Welcome to PR Mandir Education for All. Today we are going to discuss sex determination. As the name suggests, sex determination means the determination of sex. If we divide the sex determination, we can divide it into two parts. But before that, we will divide our chromosomes. We are having two types of chromosomes. First is autosomes and the second one is sex chromosomes. Autosomes, all other chromosomes of our body except sex chromosome are autosomes, and the sex chromosomes, like in human being, sex chromosomes are XX and XY. Okay, so this is the type of chromosomes we are having. Now the type of sex determination. We are having different chromosomes. In this, XX are homo means एक जैसा, and XY is hetero means जिसमें अलग अलग टाइप के एलील्स जो है वो प्रेजेंट हो. तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन. First type of sex determination we are having, in which the male is hetero gametype, means male are having two different type of chromosomes, like in case of humans XX and XY for males. Similarly, XX and XO type of sex determination is also present. This is A and this is B. But in both the sex determination, both type of sex determination, male is heterogamous type. यानी मेल के पास दो different chromosomes हैं. Another type of sex determination, in which the female is heterogamy. So in this, what happened? Male are Z. In one case, it is ZW, and in other case it is ZO. So I hope ये तो सिंपल है. सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होगा बेटे? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि जब हमारी फर्टिलाइजेशन हो रही है, इट इज अर्लियर स्टेज व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी कैन डिटरमिन द सेक्स. द सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय द सेक्स क्रोमोसोम and the autosomes are not involved in sex determination. Sex chromosomes, when we are doing sex determination, it is of two types, that is the male heterogamy and the female heterogamy. Once we are discussing the male heterogamy, in which the male are having two different type of alleles, and in case of female heterogamy, females are having the two different kind of alleles, that is ZW and ZO. So we are discussing it in detail. अब हम इन सभी प्रोसेस को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. गो. सो दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने अभी आपको बताया है, इन विच द मेल इज हेटेरोगैमस यानी कि XY. मैंने क्रॉस बनाकर देखे हैं बेटे. दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स सेक्स डिटर्मिनेशन ये हमारी क्या है, ह्यूमन बीइंग के अंदर होंगे. इसमें ह्यूमन के अंदर in this is in human, and this we are having in grass hoppers के अंदर. हम इस तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन को करते हैं. ओके, वी विल स्टार्ट विद द क्रॉसेस. किस तरह से बनाए हैं बेटे? मेल एंड फीमेल. दिस A स्टैंड्स फॉर द ऑटोसोम्स. ये हमारी जीनोटाइप है पेरेंट्स की. पेरेंट्स हम लिख देते हैं इसको P
यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों तरीके से यहाँ पे पेरेंट्स हैं ये। तो अब ये मेल एंड फीमेल। सो मेल किस तरह से हम डिटरमिन कर रहे हैं, दैट इज बाय XY क्रोमोसोम्स एंड द फीमेल इज हैविंग XX क्रोमोसोम्स। बड़ी ध्यान से इसको समझना है बेटे, बिकॉज नॉट ओनली इन सेक्स डिटर्मिनेशन, ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, इज द मेल चाइल्ड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द मेल और द फीमेल गैमेट। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओनली द मेल इज हैविंग द Y क्रोमोसोम, सो ओनली द मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड और द मेल चाइल्ड। फीमेल तो दोनों को ही X क्रोमोसोम्स देगी। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन भी आता है तो उसके अंदर भी आपको ये क्रॉस बनाकर जो है वो दिखाना है। नाउ अब ये इसके गैमीट्स बनाने लगेंगे तो मेल के अंदर दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनेंगे, दैट इज A+X एंड A+Y, and the female is having only one type of gamete, only A+X। तो जहां भी जुड़ेगा तो वहां पर ये सिर्फ A+X ही जुड़ेगा, whether it is a girl child or a boy child। ओके, तो अब हम यहाँ पे हमने ये गैमीट्स बना लिए, these are गैमीट्स, और अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑफस्प्रिंग आए हैं। तो ये ऑफस्प्रिंग के अंदर दिस इज द मेल चाइल्ड, द सिंबल इज ऑफ मेल, एंड दिस इज द फीमेल चाइल्ड, दैट इज होमोगैमस। ओके, नाउ द ग्रासहोपर वी विल डिस्कस। ऑटोसोम्स है बेटे, एंड XO इज मेल एंड XX इज female. Again the male is having two different type of gamete, that is A+X and A+O, and in the female A+X. So again we are having XX. If this cross do happen then it is XX, and if this cross do happen then it is, इसमें भी क्रॉस दिखा देते हैं। तो अगर इस तरह का क्रॉस होगा then it will be male, and in case of this it will be female। तो देखो सेक्स डिटर्मिनेशन हमने दो टाइप की, ग्रासहोपर की, ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग का केस जो है हम इसके ऊपर स्टार लगाएंगे बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट केस। कई क्वेश्चंस आ जाते हैं इसी के, थोड़ा बहुत अमेंड कर ये इसी तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपने क्रॉस जो है बड़े ध्यान से करना है, याद भी करना है और रिमेम्बर भी करना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस another type of sex determination. Go. So in this type of sex determination we are going to discuss, ये इस तरह की sex determination है जिसके अंदर जो फीमेल होगी बेटे वो होगी हमारी हेटेरोगैमस या हेटेरोगैमी जो परफॉर्म करेगी। तो इसके अंदर फीमेल जो है दैट इज ZW, and in this also the female we are having that is ZO। ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, कॉकरोच के अंदर। एंड ये किस तरह से प्रेजेंट होती है, ये फिशेस के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, फिश के अंदर, फाउल्स के अंदर भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये फिश और फाउल इन विच द मेल इज होमोजाइगस, तो मेल के पास एक ही तरह का गैमीट बनेगा। ये गैमीट है हमारा, G स्टैंड्स फॉर द गैमीट एंड पेरेंट। सो गैमीट मेल का कैसा बनेगा, एक ही तरह का बनेगा, दैट इज A+Z, and the female is having two different type of gametes, that is having A+Z and A+W। In this case also we will make first of all the gametes। तो gametes किस तरह के हैं, मेल का एक ही तरह का गैमीट बनेगा A+Z, and the female will have two different type of gametes, that is A+Z and A+O। तो ये दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स आ गए। इट इज क्लियर टू यू कि ये दो तरह के गैमेट्स आ गए, A+Z एंड A+W, ये गैमेट्स आ गए बेटे। A+Z एंड A+Z भी है एंड A+O भी है। नाउ वी विल क्रॉस दीज गैमेट्स। अब इनको क्रॉस करेंगे तो इसका और इसका क्रॉस होगा एंड इसका और इसका क्रॉस होगा। तो A plus Z and Z, this will be male because male is homogamous। Next A plus ZW, this will be female। Next A and
Z, Z. Then it will be a male child, and A plus Z, O, it will be a female child. So this is the female portion. So with this we have discussed all the 4 types of sex determination. First was in which the male was heterogamous, and the second one was in which the female was heterogamous. Thank you.